and as you know that in the previous lectures we have talked about the reproduction part and more specifically the asexual reproduction part, right? So in today's video we will be talking about the sexual reproduction part, which can be of 3 types in bacteria that we have discussed briefly in my previous video, that were conjugation, transformation and transduction, right? So in this video we will be talking about these types of sexual reproduction in detail. So also, if you haven't seen my previous video wherein I have discussed about the asexual reproduction, I'll provide the link. Please do check it out. So let's go into the video. So the first process of sexual reproduction is the conjugation part, wherein a kind of physical link or conjugation tube is created between the male and female bacteria, and the transfer of genetic material takes place through that physical bridge. So they kind of come in contact, form a conjugation tube, and then this transfer occurs. ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होंगे, एक होगा F पॉजिटिव और एक होगा F नेगेटिव. यूजुअली F पॉजिटिव आर मेल्स एंड F नेगेटिव आर कंसिडर्ड टू बी एज फीमेल्स. ठीक है. तो F पॉजिटिव का क्या मतलब है? जिनके पास ये फिजिकल ब्रिज बनाने के लिए, फिजिकल लिंक बनाने के लिए ये सेक्स पिलाई प्रेजेंट है. Sex pili are those physical links or those which will be going to form the conjugation tubes. So these are the sex pili, which is around 6 to 8 in a typical bacterial cell. Also along with this, some strains of E. coli also has a kind of extra chromosomal DNA known as plasmid, है ना? And उस plasmid के ऊपर a certain gene or a factor is present known as F factor or fertility factor. So this F factor is responsible for providing the fertility to the bacteria. ठीक है. तो जिसमें ये F factor present नहीं होगा, sex pili will not be formed. Also there will be no conjugation. ठीक है. क्योंकि मतलब कॉन्जुगेशन होगा बट वो फिर F नेगेटिव बनेगा, वो F पॉजिटिव नहीं होगा. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय F पॉजिटिव बैक्टीरिया? F पॉजिटिव बैक्टीरिया विच इज कंसिडर्ड टू बी द मेल पार्ट हैज सेक्स पिलाई एज वेल एज F फैक्टर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड विच इज फर्टिलिटी फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब as well as this transfer to take place. ठीक है. अब ये ट्रांसफर किस में होगा? कभी भी आप कोई भी चीज अगर किसी को डोनेट कर रहे हो तो उसी को दोगे जिसके पास वो चीज नहीं है. तो यहाँ पर भी जो दूसरा बैक्टीरिया इन कंसिडरेशन हम लेते हैं, वो दूसरा बैक्टीरिया किस तरीके का होता है? इट इज F नेगेटिव विच इज कंसिडर्ड टू बी द फीमेल, which is not having this plasmid and a F factor. तो इनमें F factor नहीं, मे भी plasmid हो सकता है बट उसमें F factor ना हो. ठीक है, ये भी पॉसिबल है. तो यहाँ पे नहीं आपको F factor नहीं दिख रहा है. ठीक है. और F factor ना दिखने का और ना ही सेक्स पिलाई दिख रहे हैं. सो ये F factor नहीं होने से यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा विदाउट हैविंग F factor. ठीक है. Now, ये जो conjugation होगा, this will occur between an F positive or a male bacterium with an F negative or a female bacterium, जहाँ पर male bacterium will transfer its genetic material to the female bacterium, making this one also a positive one. जब इसने अपना genetic material इसे transfer कर दिया तो ये भी F positive हो जाएगा. ठीक है. और ऐसे ही प्रोसेस से जब ये F पॉजिटिव बनाते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं मीरोजाइगोट्स. तो प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्जुगेशन को क्या बोलेंगे? मीरोजाइगोट्स. ठीक है. आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर जाने तो सबसे पहले ये दिया किसने था, डिस्कवर किसने किया था? तो ये डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट ने, विच वॉज लेडरबर्ग एंड टेटम. These 2 scientists discovered this
कॉन्जुगेशन प्रोसेस इन बैक्टीरियाज, लेकिन किन बैक्टीरियाज में? सो बेसिकली इन ई कोलाई बैक्टीरिया, बट कौन कौन से स्ट्रेन्स में? K12 एंड K24 स्ट्रेन्स में। So this was discovered by two scientists, Lederberg and Tatum। कहां पर? इन E. coli बैक्टीरिया। कौन से स्ट्रेन पर? K12 एंड K24 स्ट्रेन पर। तो इन्होंने क्या देखा कि two types of bacteria are present. One type which is F positive having in sex pili and a plasmid with an F factor. Also the another bacteria which was lacking this F factor, no sex pili, and that's why considered to be an F negative bacterium. ठीक है? So the conjugation was always occurring between an F positive and an F negative bacterium. कभी भी F positive या F negative नहीं कर सकते कॉन्जुगेशन। ठीक है? तो होगा क्या कि दो बैक्टीरिया के बीच में एक लिंक बनेगी फिजिकल, एंड दिस विल बी द कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहां से ये एक तरीके से खुलना स्टार्ट होगा, यहां से निक क्रिएट होगा, एक सर्कल के बीच में से निक क्रिएट होगा और ये यहां से खुलेगा, और फिर ये जो पार्ट है ये इधर ट्रांसफर होने लगेगा। तो कैसे? ये पार्ट जो होगा वो ऐसे इधर आ जाएगा, तो ये पार्ट एक स्ट्रैंड इधर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कॉपी बन जाएगी एक, और उसके बाद दूसरी कॉपी ये दूसरे को दे देगा, वरना ये खुद भी F नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन अकर्स एंड देन दिस ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मेकिंग बोथ द बैक्टीरियम F पॉजिटिव टाइप। ठीक है? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। So this conjugation that we have discussed occurs very rarely, like around in 1 bacteria per 10,000 bacteria। ठीक है? तो 10,000 बैक्टीरिया में से कोई एक बैक्टीरिया होगा जो कॉन्जुगेशन करना प्रेफर करेगा। ठीक है? सो अब हम एक केस पढ़ते हैं इसी का, विच इज HFR। व्हाट इज HFR? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है? तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं? आपको याद होगा जब हम पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तब हमने एक टर्म पढ़ा था एपिसोम, मीजोजोम। क्या था वो? हमने एक चीज बोली थी कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड मीजोजोम से ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। ठीक है? और मैंने बोला था यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्या होता है, दिस प्लाज्मिड गेट्स एसोसिएटेड विद द मीजोजोम forming a complex known as episomal complex or episome, right? तो ये क्या होता है, in some of the bacteria in few strains this episome formation occurs। ठीक है? और ये episome formation होने से होता क्या है, इनकी जो frequency of conjugation है वो increase हो जाती है by around 100 times। तो 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी for conjugation to occur, and that's why these type of males जहां पर एपिजोमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जहां पर जो F फैक्टर है वो इन द फॉर्म ऑफ एपिजोम में प्रेजेंट है, those males are known as super males or high frequency recombinants, HFRs। ठीक है? तो HFRs क्या है? वो बैक्टीरियाज या वो F पॉजिटिव बैक्टीरियाज जिनके प्लाज्मिड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं विद मीजोजोम फॉर्मिंग एन एपिजोम, एंड दिस एपिजोम फॉर्मेशन इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्जुगेशन बाय अबाउट 100 टाइम्स, मेकिंग दीज मेल्स अ सुपर मेल और हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। ठीक है? तो होता क्या है कि जब भी आपका एक HFR मेल किसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, विद एन F नेगेटिव फीमेल, तो दो प्रोबेबिलिटी होती हैं। अगर आप कह रहे हो एक HFR मेल क्रॉस करता है एक F नेगेटिव फीमेल के साथ, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो F पॉजिटिव बन जाए, ठीक है ना, और या तो मीरोजाइगोट कैसा है, F नेगेटिव ही बने विद फ्यू जीन्स ऑफ HFR। होता क्या है, ये जो प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का, ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, दिस इज वेरी स्लो, एंड दैट्स व्हाई ये
बहुत छोटे से टाइम के लिए कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। अगर उतने टाइम में ये पूरा ट्रांसफर हो गया तो हो गया, वरना क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा और वो अलग हो जाएंगे बैक्टीरिया। तो एफ फैक्टर जो होता है ना, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड। तो जैसे मान लो अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर मान लो यहां से निक क्रिएट हुई तो एफ फैक्टर इधर प्रेजेंट होगा, तो पहले क्या पास होगा, ये वाला पार्ट पास होगा, तो ये जाएगा जब तक ये लास्ट में ये जाएगा। तो कई बार इतनी देर तक एसोसिएशन नहीं होता है, और जितनी देर में ये एफ फैक्टर लास्ट पार्ट जाता उससे पहले ही वो अलग हो जाते हैं बैक्टीरिया। सो इस केस में क्या हुआ, वो एफ पॉजिटिव बन ही नहीं पाया, वो एफ नेगेटिव ही रहा, बट बहुत सारे उसके पास जीन्स आ गए एचएफआर के, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट के। और नॉर्मल केस में अगर वो पूरा ट्रांसफर हो गया देन यू गेट एन एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस होता है ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स और हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। ऑल्सो दिस प्रोसेस वॉज गिवन बाय two scientists or discovered by two scientists, Jacob and Hallman. ठीक है, so this completes your conjugation part. So the next process is transduction. Transduction is the process where the genetic material is transferred from one bacterium to another bacterium, है ना? But किस वे से? By means of a carrier known as bacteriophage. What is bacteriophage first of all? तो ये मैंने पहले भी बताया था कि bacteriophage जो होता है that is nothing but just the virus which infects bacterial cell. ठीक है, तो एक वायरस है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, उसको हम बोल देते हैं बैक्टीरियोफेज। ऑल्सो बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, सो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, सबसे पहले एक ई कोलाई को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो मान लो ये एक ई कोलाई का सेल है, ठीक है, इसका ये अपना डीएनए है मान लो, एंड यहाँ पे आपका ये क्या आया, बैक्टीरियोफेज विद इट्स ओन डीएनए। तो आपको इतना बेसिक तो पता ही है कि इसका वायरस का बाहर का प्रोटीन कोट होता है और अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, so first thing it will do is infection. So it will infect this E. coli by introducing its genetic material inside the host bacterium. ठीक है, तो ये क्या करेगा, विदाउट, ये पूरा नहीं मूव करेगा, इसका प्रोटीन कोड मूव नहीं करेगा, ओनली द जेनेटिक मटेरियल विल एंटर, है ना। तो अब नेक्स्ट सेल में क्या होगा, मतलब उसी सेल में नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, यहाँ पे बाहर रह गया है केवल और केवल प्रोटीन कोड, और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल कर दिया है अंदर ट्रांसफर। ये दूसरे कलर से दिखाते हैं ताकि समझने में इजी होगा। तो ये मान लो ये जेनेटिक मटेरियल इसने अपना अंदर ट्रांसफर कर दिया विच इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये इसका अपना ई कोलाई का डीएनए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा किसका, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज का इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई को तो नहीं पता है ना, उसका काम केवल है रेप्लिकेशन करना। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो भी विसिनिटी में जगह आया वायरल डीएनए, इसको ये इनकॉर्पोरेट कर लेगी एंड वो नॉर्मल अपना मशीनरी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज पे, मान लो ये है बैक्टीरिया, अब क्या हुआ, इसने अपने साथ साथ इस बैक्टीरिया को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, और अब इसका रेप्लिकेशन जब होगा साथ साथ में वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अब इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे ये डीएनए आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे डीएनए आ जाएंगे क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ है, तो बहुत टाइप के डीएनए आएंगे। ठीक है, इवन ऐसे भी आएंगे कि जिसमें हाफ वायरल है और हाफ होस्ट का है। तो ये क्या करेंगे, अब ये क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बन गई है। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज जो बनी है, अब ये फाइनली क्या होगा, ये प्रोटीन कोट बनाएंगे। अब तो एक बैक्टीरिया के अंदर बड़े सारे कैप्सिड के साथ बहुत सारे ये बन जाएंगे क्या, बैक्टीरियोफेज और वायरल पार्टिकल्स।
ठीक है ना, जिसमें बहुत टाइप के जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, जहां पर एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने सारे, ये तो जितने दिखा पा रही हूँ मैं उतने दिखा रही हूँ, आप सोचो एक सेल के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल कैन प्रोलिफरेट और कैन ग्रो। ठीक है, तो अब फाइनली ये जब भर गया पूरा सेल, देन फाइनली होगा क्या, लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, और ये बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो गई और ये सारे जो है वायरल पार्टिकल्स गेट रिलीज्ड इन द आउटसाइड। ठीक है, तो आउटसाइड एनवायरनमेंट में ये सब रिलीज हो गए। अब फाइनली व्हेन दिस बैक्टीरियोफाज विद द डीएनए ऑफ वायरस एज वेल एज द डीएनए ऑफ दिस ई कोलाई विल इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरिया, तो ये क्या करेगा, अपने डीएनए के साथ साथ जो यहां से इस ई कोलाई से डीएनए लेकर आया है वो ई कोलाई 2 में भी दे देगा। तो फाइनली ई कोलाई 1 का डीएनए by means of bacteriophage gets transferred into the another bacteria which is E. coli 2। समझ आया? तो स्टार्ट कहां से हुआ था, E. coli 1 से, और पहुंचा कहां पे, दूसरे E. coli 2 तक, और सिमिलरली आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। Although this DNA is not as stable, that's why this DNA is also known as abortive DNA because after some generation it will get degraded। So इतना स्टेबल नहीं होता है, बट ट्रांसफर तो हुआ ना, तो ट्रांसडक्शन तो कराया आपने, तो ट्रांसडक्शन ऐसे होता है बाय मींस ऑफ बैक्टीरियोफाज। क्लियर हो गया? इनके जो साइंटिस्ट याद रखने हैं वो याद रखने हैं जिंडर एंड लेडरबर्ग। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसमें किया था, इन सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जो टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में जिंडर एंड लेडरबर्ग ने ये फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। Also this DNA is known as abortive DNA because this is not as stable, it will get degraded after 2 to 3 generations. Also this bacteria which allows the viral cell to replicate inside itself is known as lysogenic bacteria। ठीक है, तो दिस इज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि अलाउ कर रहा है वायरस को अपना जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। सो द लास्ट पार्ट इन दिस टॉपिक इज द ट्रांसडक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग कि कौन सा सेगमेंट ऑफ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड इनटू द न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसडक्शन कैन बी generalized or it can be specialized। as the name is saying generalized मतलब any segment of the plasmid gets transferred to another bacterium। ठीक है, तो यहां पर रैंडम है, कोई भी सेगमेंट जो होगा वो वायरल डीएनए जो है उसमें इनकॉर्पोरेट होकर वो नए बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। बट स्पेशलाइज्ड में देयर इज की एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी रैंडम जीन सेगमेंट नहीं ट्रांसफर होगा, ओनली द स्पेसिफिक जीन सेगमेंट विच नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड वही सेगमेंट ट्रांसफर होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये है जनरलाइज, तो यहाँ पर रैंडम हो गया, कोई भी एनी जीन सेगमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड, हियर ओनली द स्पेसिफिक जीन सेगमेंट शुड बी ट्रांसफर्ड। तो याद रखोगे जनरलाइज्ड का एग्जाम्पल होता है T4 bacteriophage which transfer any segment of the plasmid, and this is an example of lambda bacteriophage which only transfer a specific gene segment, right? So these are the 2 types of transduction. So this completes our process of transduction. Now the last part of the sexual reproduction or the last process is known as transformation, wherein the genetic material is acquired by a new bacterium which is released in the surrounding medium by some another bacterium। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मीडियम से एक्वायर कर रहा है। अब तो कॉन्जुगेशन में एक फिजिकल लिंक बना जिसने ट्रांसफर किया F पॉजिटिव टू F नेगेटिव। ट्रांसडक्शन में
एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में देयर वाज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय मींस ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। यहां पर देयर इज नो सच लिंक। यहां पर क्या हो रहा है कि मीडियम में जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है। बाय हो सकता है कि कोई पहले बैक्टीरिया मर गया हो, किल्ड हो गया हो किसी रीजन की वजह से, और उसने अपना जेनेटिक मटेरियल मीडियम में रिलीज कर दिया। सो अगर कोई और बैक्टीरिया होगा उसकी विसिनिटी में तो वो टेंडेंसी रखेगा टू एक्वायर दैट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मीडियम। तो ये प्रोसेस जो है, ये सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था एसएफ ग्रिफिथ ने, और इसने स्टडी किया था ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। दिस इज द बैक्टीरिया फॉर द निमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, तो निमोनिया डिजीज ड्यू टू दिस बैक्टीरिया ओनली। So Streptococcus pneumoniae was the basis for the discovery of this transformation process. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो स्ट्रेन्स लिए। उन्होंने देखा Streptococcus pneumonia कॉलोनी में दो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स प्रेजेंट है। One was S strain, which was the smooth strain, and another one was the R strain or rough strain. तो रफ स्ट्रेन क्यों रफ था? बिकॉज उसके आसपास कोई कोटिंग नहीं थी। बट स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ इसलिए था बिकॉज उसके आसपास एक प्रोटीनेशियस कह लो या उसके आसपास एक शुगर कोट प्रेजेंट था। ठीक है, जिसको हम कैप्सूल बोल रहे थे। सो ड्यू टू दिस कैप्सूल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाज पैथोजेनिक, whereas R strain bacteria which does not have capsule, दिस वॉज नॉन पैथोजेनिक। मतलब कौन सा वाला स्ट्रेन निमोनिया कॉज कर रहा था? एस स्ट्रेन वाला। और आर स्ट्रेन वाला नॉर्मल था, दैट वॉज नॉट कॉजिंग निमोनिया। तो एक पूरा ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें उसने ये देखा कि व्हेन आई एम इंजेक्टिंग माइस विद एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, तो जब एस स्ट्रेन के साथ किया तो दिस वॉज पैथोजेनिक, तो माइस वॉज डेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया। ठीक है, बट जब आर स्ट्रेन के साथ माइस को रखा गया तो माइस वॉज लिविंग, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक था तो कुछ नहीं हुआ उसको, माइस को। बट जब माइस को हमने रखा विद किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है, बट लिविंग आर स्ट्रेन, मतलब इसको किल्ड किया है और इसको लिविंग रखा, तो होना क्या चाहिए था? यही तो पैथोजेनिक है, यही मरा हुआ है, तो कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, निमोनिया होना ही नहीं चाहिए। बट पहली बार ऐसा देखा गया कि निमोनिया हो रहा था। तो क्या रीजन हो सकता है? जब जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है निमोनिया, जब वो मरा हुआ है, दूसरा वाला कॉज कर नहीं सकता, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि माइस को निमोनिया हो रहा है और माइस डेड हो रहा है? तो इसका रीजन आया ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये इस बैक्टीरिया ने, जब हमने उसको किल किया तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल मीडियम में रिलीज कर दिया, और जब आर स्ट्रेन लिविंग डाला तो इसके पास टेंडेंसी थी टू इनकॉर्पोरेट दैट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मीडियम, एंड दिस बिकेम और दिस acquired the properties of S strain bacteria by acquiring its genetic material, and it became the transformed bacteria having the characteristics of S strain. तो जो बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक था, अब उसने इसका जेनेटिक मटेरियल एक्वायर करके ये भी पैथोजेनिक बन गया, and that's why mice died due to pneumonia infection. So this was the process wherein Griffith conducted an experiment on Streptococcus pneumoniae and concluded that the mice died due to infection by keeping S strain killed bacteria and living R strain bacteria, because transformation occurred between killed S strain bacteria and living R strain bacteria. ठीक है? So this was the process, and this was the process, and इसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हैं। इसने for the first time बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, एंड फाइनली दिस वाज प्रूव्ड बाय 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्टी, जो कि आप 12th में पढ़ते हो। तो उन 3 साइंटिस्ट ने पता लगाया कि फाइनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे एंड वी कंप्लीटेड आवर रिप्रोडक्शन पार्ट. So in the next video we'll be talking about cyanobacteria, right? So stay tuned.